See, the second formula is valid for solid, liquid and gas for 3 state of matter, and also if number of particle means atom or molecule or ion, number of particle is given. यदि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है थी बताओ, नंबर ऑफ मोल is equal to total number of particle given divided by Na, where Na is Avogadro's number which has the value of NCERT में लिखा है 6.022 into 10 to the power 23 for convenience. जब एंट्रेंस वगैरह में क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक नहीं, एक्चुअली आप जब लोगे 6.023 into 10 to the power 23 तो that will be quite easier. ठीक है, 6.023 into 10 to the power 23 022 NCERT रे देछि, but 6.023 नेले क्वेश्चन गुड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए into 10 to the power 23 number of particles. Actually इसका बेस क्या है कि 1 mole of any substance, 1 mole of any substance, 1 mole of oxygen near, 1 mole of helium near, 1 mole of neon near, 1 mole of hydrogen near, it consists of Avogadro's number of particles. माने 1 mole of O2 भीतर है Avogadro's number of 6.023 into 10 to the power 23 number of oxygen thibo, 1 mole of helium near, 1 mole of helium the 6.023 into 10 to the power 23 number of helium thibo, 1 mole of CO3 minus 2 carbonate ion lo, 1 mole of carbonate ion will consist of 6.023 into 10 to the power 23 number of carbonate ion. So 1 mole of any substance has number of particle is equal to Avogadro's number of particle. जैसे कि 1 mole of O2 contains 6.023 into 10 to the power 23 number of O2. 1 mole of sodium contains Na number of sodium. 1 mole of calcium contains Avogadro's number of calcium. 1 mole of any substance, 1 mole of Priyanshu contains Avogadro's number of Priyanshu. 1 mole of Upashana contains Avogadro's number of Upashana. 1 mole of Rishiraj contains Avogadro's number of Rishiraj. कुछ भी दे सकते हो. 1 mole means Avogadro's number of that substance. Now, अच्छा ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले जाओ, ठीक है. हाँ बोलो प्रियांशु, बोलो. सर लिखा है 1 मोल इक्वल टू 6.022 to 1367 into 10 to the 23. अरे वही 6.022 उसके मतलब वो डेसिमल पोजीशन में उतना दिया हुआ है ना, लेकिन एंट्रेंस में जब क्वेश्चन पड़ेगा थोड़ी ना इतना कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, तो इसीलिए 6.023 लेगा. ठीक है. अरे एंट्रेंस में थोड़ी ना इतना ज्यादा डेसिमल पोजीशन तक क्वेश्चन में आएगा. सर मैं मतलब पूछ रहा था 0.0221 है ना, तो सर वो 23 कैसे हो जा रहा है?
आ जाता है एंट्रांस में एक क्वेश्चन में, अभी इसके बाद क्वेश्चन आपको दूंगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं पूरा मतलब जो 10 years क्वेश्चन पेपर जो भी है मैं उसी में से क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि व्हाई आई जस्ट प्रीफर टू टेक द 6.023 इन प्लेस ऑफ 6.022, ठीक है। 6.022 की जगह पर मैंने क्यों 6.023 लिया, ठीक है। दो एनसीईआरटी में 6.022 दिया गया Yes, है। sir. अच्छा, क्वेश्चन दिया गया था कि 12.046 into 10 to the power 25 number of CO2 contains dash mole. 12.046 into 10 to the power 25 number of CO2 is equal to dash mole. Simple. Number of mole is equal to 12.046 into 10 to the power 25 divided by Avogadro's number. Actually जो 12.046 दिया गया था, it is divisible by आया समझ में क्यों मैंने लिया था 6.023, क्योंकि एंट्रांस में जब भी क्वेश्चन आता है इट इज जनरली डिविजिबल बाय 6.023, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। देन थर्ड फॉर्मूला को आ जाते हैं, ठीक है। देन वी विल गो फॉर द थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला के हिसाब से थर्ड फॉर्मूला इज वैलिड फॉर only for solid or for liquid. Third formula is not valid for gas. Third formula is valid for solid or liquid. Third formula is actually a derived form of first formula. Third formula is nothing but the derived form of first formula. First formula में आपको पता है, अच्छा यहां पर if volume of the substance is given, आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। और आप सबको ये पता है कि मास बाय वॉल्यूम is equal to density, hence mass is equal to volume into density. So number of moles is equal to mass of the substance की जगह पर मैं पुट कर सकता हूं volume into density divided by मोलर मास। सिंपल, मैंने मास की जगह पर वॉल्यूम पुट कर दिया, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस गिवन इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। देन वी विल गो फॉर चौथा फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला है क्या, देखो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप वीडियो में से भी लिख सकते हो या फिर आप नोट में से भी लिख सकते हो, ठीक है। नोट तो मैं वैसे भी दे दूंगा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का देखता हूँ, कल तक मैं स्कैन करके रख लेता हूँ, आपको दे दूंगा कल तक।
सर हमको तो डेंसिटी भी नहीं पता, तो हम इसको अगर निकालेंगे दिया गया कैसे? होगा तो, अगर वॉल्यूम गिवन होगा डेंसिटी भी गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया जाएगा, डेंसिटी दिया जाएगा, ठीक है। नाउ then we will go for the fourth formula. तो फोर्थ फॉर्मूला बस गैस के लिए वैलिड है। फोर्थ फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ओनली गैस इफ वॉल्यूम इज गिवन, मतलब गैस का वॉल्यूम दिया गया होगा, एंड द कंडीशन is at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया गया होगा, ठीक है। कंडीशन STP हुआ तो डिटेल्सली जाने से पहले मैं आपको STP और NTP के अंदर डिफरेंस बता देता हूं। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो STP में टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 atm प्रेशर। एनटीपी में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस और 293 केल्विन, प्रेशर इज सेम 1 atm प्रेशर, ठीक है। तो अगर कंडीशन एसटीपी दिया गया होगा तो, ठीक है, कंडीशन अगर एसटीपी दिया गया होगा, सो नंबर ऑफ मोल्स is equal to volume of the substance, volume of the gas, अल्टीमेटली तो यहाँ पर गैस ही होगा ना, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर, और कंडीशन है कि वो एसटीपी में होगा, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। तो इसका फंडा है क्या? इसका फंडा है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, sorry, 1 mole of gas, 1 mole of gas or any gas at STP has the volume of 22.4 लीटर। अगर मिलीलीटर में दिया गया होगा तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस in milliliter divided by 22400. Number of moles is equal to volume of the gas in ml divided by 22400. अच्छा, नेक्स्ट है सिबा फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला कौन होगा? The fifth formula is যদি গ্যাসটা এসটিপি রে ଦେଇନଥିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏସଟିପି ରେ ଥିଲେ ତ v by 22.4 लीटर कर दो, but if the substance is not in gas form, sorry, not at STP, when say gas ପାଇଁ valid, this formula is also valid for only gas, and if volume of the gas given
but the condition is not at STP. The condition टा STP रे नथिबो तो हबो कौन देखो the number of moles is equal to volume of the substance. sorry एटी गोटे फॉर्मूला पकेबो तमे समस्त स्कूल बेले नॉर्मली जी आईसीएससी कि सीएचएससी तो तमे समस्त स्कूल बेले गोटे फॉर्मूला पढ़थिबो आइडियल गैस इक्वेशन पीबी इज इक्वल टू एनआरटी सीबीएसई के बच्चे नहीं पढ़े हो सीएचएस सॉरी बीएससी एंड सीबीएसई दी जन पढ़थिबो जे पीबी इज इक्वल टू एनआरटी where P is in the pressure, P is the pressure in ATM, V hela volume, N hela number of moles, R value hela 0.0821 which is known as gas constant, T is the temperature in Kelvin. टेम्परेचर टा मन रखो केमिकल कैलकुलेशन सबु थरे तमे टेम्परेचर टा केल्विन रे नबो हला केबे भी आउ को फॉर्म रे नबो सो नंबर ऑफ मोल केमति तुम बाहर कर परिबो ना पीवी बाय आरटी इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स तो एक फॉर्मूला टा केमति डिराइव हैला you can easily get the formula ए फॉर्मूला टा केमति डिराइव हैला तमे इजीली जानि परिबो when you will go through the gaseous state ठीक है जेतेबेला हम states of matter रे gaseous state पढिबा सेतेबेला you can clearly go through this formula तमे clearly ए फॉर्मूला टा जानि परिबो सरला so that is all the 5 formula for finding the number of moles. This is all 5 formula for finding the number of moles. तो किछि न्यूमेरिकल सॉल्व करिबा देन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को जिबा हला देखो क्वेश्चन गोटे लिखा if 88 gram of carbon dioxide is given, if 88 gram of carbon dioxide is given, find out the number of moles number of molecules, find out number of moles, number of molecule, find out number of mole, number of molecule, number of proton, number of electron, number of proton, number of electron, number of O2, number of O2, number of O, in it. सर नंबर ऑफ ओ के बाद क्या नंबर बोले ऑफ number of इलेक्ट्रॉन के बाद क्या बोले number of mole, number of molecule, number of proton, number of electron, number of mole, molecule, proton, electron, then number of O2, number of O. अच्छा एमती क्वेश्चन पढ़ी थिले मन रखि था
तमरो सबु जाक क्वेश्चन ना आंसर अछि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भीतर यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाहर कर देला देन तमे सबु जाक क्वेश्चन ना आंसर पाइ जे अच्छा 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फास्ट नंबर ऑफ मोल केते हबो मास गिवन बाय मोलार मास एबे तमे जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रो मोलार मास बाहर करथिला 44 सो टोटल नंबर ऑफ मोल केते गेला 2 मोल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस भितरे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस भितरे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल था 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस भितरे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल था तो एठी केते मोल रो सब्सटेंस अछि 2 मोल रो सब्सटेंस सो 2 मोल रो सब्सटेंस भितरे केतेटा मॉलिक्यूल थिबो 1 मोल भितरे एन नंबर ऑफ पार्टिकल तो 2 मोल भितरे केते 2 into एन नंबर तब तो 12.046 लिख हाँ 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 तमे लिखो ना Yes. मैंने जाके पकड़ दिया 2 into 6.023 into 10 to the power 23 is equal to 12.046 into 10 to the power 23 number of carbon dioxide एतिकिटा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अछि कहा भितरे 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भितरे 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भितरे एतिकी 12.046 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अछि अच्छा तो मु कहली जे तमरो क्वेश्चन टोटल सॉल्व हे जिवो कोथरे ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भितर तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाहर गेला तमरो एतिकी नंबर ऑफ प्रोटॉन अच्छा 1 CO2 रे 1 कार्बन डाइऑक्साइड रे केतेटा प्रोटॉन अछि देखिला 6 टा कार्बन न 6 टा प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जति की 6 ऑक्सीजन न केतेटा प्रोटॉन गोटे ऑक्सीजन न 8 एटॉमिक नंबर तो दीटा ऑक्सीजन अछि 8 into 2 so 6 plus 16 is equal to केते 22 नंबर तो टोटल गोटे कार्बन डाइऑक्साइड भितरे 22 नंबर ऑफ प्रोटॉन अछि 1 कार्बन डाइऑक्साइड भितरे तो हमरो 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भितरे केतेटा कार्बन डाइऑक्साइड अछि 12.046 into 10 to the power 23 number of carbon dioxide 1 carbon dioxide carries 22 number of proton तो 12.046 into 10 to the power 23 carbon dioxide or 2 into Na number of carbon dioxide will carry जणे लोक 22 टा लडू खाइला एति लोक केते खाइबे 22 into 2 into Na number of proton ए जाय किए न बुझी पारला यू शुड टेक्स्ट मी रैपिडली जणे लोक एतिकिटा लडू खाइला एतिकी लोक जणे लोक 5 टा लडू खाइला तो 5 10 टा लोक केतेटा खाइबे 10 into 5 अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड इज न्यूट्रल एलिमेंट न्यूट्रल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड इज न्यूट्रल कंपाउंड तो ता पाखरे प्रोटॉन जति की सेतिकिटा इलेक्ट्रॉन थिबो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड टा न्यूट्रल कंपाउंड तो ता पाखरे प्रोटॉन जति की इलेक्ट्रॉन भी कोन थिबो सेति की थिबो तो प्रोटॉन केते गेला टोटल हमर 22 into 2 into Na number of 44 into Na number of proton तो इलेक्ट्रॉन भी केते हबो सेम into n number of electrons same then number of O2 गोटे कार्बन डाइऑक्साइड भितरे 1 O2 गोटे कार्बन डाइऑक्साइड भितरे 1 O2 हम पाखे टोटल केते कार्बन डाइऑक्साइड हला 2 into Na कार्बन डाइऑक्साइड जानि परला तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाहर कर देले तो हमें अन्य सब जाक तम पई इजी बस खाली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई करिया अछि गोटे रे केते टोटल एति की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले केते
2 into n रे केते हबो ते 2 into n number of O2 the last है number of O one molecule भितर one molecule of CO2 contains two oxygen atom. One molecule of CO2 contains two oxygen atom. So 2 into n रे केते थिबो 2 into n number of oxygen atom. That is केते हला 4 number of oxygen atom. केते हला तम सेटा 4 number of oxygen atom. बुझी परला. So take the screenshot. Then आमे जिबा आउ गोटे क्वेश्चन को. Then stoichiometry calculation हला. एटा जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ. अच्छा देखो 180 ग्राम of CO3 minus 2 180 ग्राम of CO3 minus 2 number of moles number of molecules number of protons number of electrons number of O3 number of O and very interestingly number of O2 वर्क करो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो 180 by 63 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो 3 into n 1 मोल रे n नंबर ऑफ था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो 1 मोल रे n नंबर ऑफ पार्टिकल तो 3 मोल रे 3 into n नंबर ऑफ पार्टिकल अच्छा गुड ठीक है नंबर ऑफ प्रोटॉन गोटे कार्बन रे 6 टा
गोटे ऑक्सीजन रे केतेटा 8टा 3टा ऑक्सीजन 24 तो टोटल केते गेला 30 नंबर ऑफ प्रोटॉन तो गोटे CO3 -2 रे 1 CO3 -2 रे -2 अच्छी डजंट मीन कि प्रोटॉन कमी जाइथिबो प्रोटॉन नंबर सेम रहइबो हला माइनस हो कि प्लस हो सेठी इलेक्ट्रॉन कम बेसी हेथिबो बट प्रोटॉन कोन रहइबो सेम रहइबो तो गोटे CO3 -2 रे 30 प्रोटॉन तो 3 * Na रे केते हबो 3 * Na * 30 गोटे रे 30 प्रोटॉन तो 3 Na पार्टिकल केते 3 * Na * 30 अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो पूर्वटारे सिना कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल थिला 10 कोन हे गला कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल थिला बोली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे गला प्रीवियस क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड था तो न्यूट्रल सब्सटेंस था तो न्यूट्रल सब्सटेंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूट्रल सब्सटेंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ये आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा लेकिन यहां पर तो न्यूट्रल नहीं है यहां पर एक आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है तो प्रोटॉन जितना है उसके साथ -2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है सो डेफिनेटली 1 CO3 -2 कंटेन 30 तो न्यूट्रल का और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि -2 है तो इसीलिए कितना हो जाएगा तो एक CO3 -2 में 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक CO3 -2 में 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 3 * Na में कितना होगा 3 * Na into 32 3 * Na into 32 number of electrons then number of O3 1 CO3 -2 में 1 O3 आप देख सकते हो 1 CO3 -2 में 1 O3 तो कितना CO3 -2 है 3 * Na number of CO3 -2 तो 3 * Na number of CO3 -2 में 3 * Na number of O3 अरे गोटे CO3 भितरे गोटे O3 अछि 3 * Na रे केते हबो 3 * Na number of O3 जणे लोक जणे गोटे लड्डू खाइला तो पांचटा लोक पांचटा लड्डू खाइले the number of O 1 CO3 -2 रे you can see 3 number of O you can see 3 number of oxygen is present so 3O so 3 * Na रे हम पाखरे अछि 3 * Na number of 3 into 3 into Na 3 into 3 into Na number of O but last टा जे कह दबो he will be prized he or she will be prized last जो बोल देगा 9 into Na but last one number of O2 जो भी बता दिया वो FMC नीट एम्स BHU सब कुछ पा जाएगा लास्ट क्वेश्चन जो कर लेगा वो सब कुछ पा जाएगा एंट्रांस नो नो ऋषि रॉन्ग करो करो हो जाएगा बहुत इजी है हाँ बोलो प्रिया 1.5 into the 6.02.
ओके, हाँ पूरा आंसर बोलो पूरा। 0. 0, गुड। अच्छा तो देखो ये सबका लिख लिया सबने? वन CO3 माइनस 2 में 3 ऑक्सीजन, तो लेट मी, मैं ऊपर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे 2 डिवाइड करता हूँ। थ्री बाई टू इंटू 2O, 1 CO3 minus 2 contain 3 by 2 into 2O. So 2 oxygen मतलब 1 O2, 2 oxygen means 1 O2. So 1 CO3 minus 2 में कितना O2 निकला? 3 by 2 O2. हाँ ठीक टाइम रे कहता हो ना। सर मु ना 2O equals to 2/3 CO3 2 minus लेखिथिली। अच्छा तू उल्टा ताको बस रेसिप्रोकल करला सर अपन लेखि देले। अच्छा देखो 1 CO3 minus 2 contain 3 by 2 O2, तो टोटल हम पाखे केतेटा रहला 3 into n number of CO3 minus 2। एटा किए न बुझी पारलो? एटा किए जानी पारलो नी? ऋतिका बुझ पारलो एटा? सर हाँ बोलो प्रियांशु। सर मैं तो आपको 1.5 बोला था, पे वो बोले नहीं। मैंने बोला कि पूरा आंसर बोला, आपने 0 बोल दिया। सर हाँ 3/2 into 3/2 into O2 के बाद में समझ नहीं आया। ओके ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन। मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो 1 CO3 minus 2 contains 3 ऑक्सीजन, ये तो आ गए। सो मैंने बस एक काम किया,